नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप, भाजपा के बीदर अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कहा। बीदर के विलासपुर ग्राम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण। सिद्धरामैया ने लिया यू टर्न, कहा जरूरत पड़ी तो युद्ध छेड़ेंगे। इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णा ने पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन के निधन पर शोक व्यक्त किया। बीओपीकेजी पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में हस्तकला कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ा असर, कारीगर भी दुखी। 26/11 मुंबई हमले के बाद तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। बीओपीकेजी आसिम मुनीर कातिल है, पाकिस्तान के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है और इसके जिम्मेदार बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे को भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने ठहराया है। आज सोमनाथ पाटिल पूर्व मंत्री भगवंत खुबा ने पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सरकार और बीदर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर बात की। इस अवसर पर बसवराज पवार, नगरसभा सदस्य शशि होसरली सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 4 ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಂಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಗಾಡಿಗಳು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ। ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದರೋಡೆಗಳು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಂಚಾಳ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಆ ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಪಂಚಾಳ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು FIR ತಗೊಳ್ಳಲಾರದೇ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತದನಂತರ ನಡೆದಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆನೇ ಕೊನೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದರೋಡೆಕರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। ಯಾವುದೇ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದಂತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಕ್ಫಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಜಮೀನನ್ನ ನೀವು ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮಠಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ। बीदर के विलासपुर ग्राम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और मंत्री रहीम खान ने किया। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, पूज्य बंतेजी डॉक्टर ज्ञान सागर, पूज्य श्री सांभाजी महाराज, श्रीमती पद्मावती वीरशेट्टी, गुमतापुरे, मारुति बौद्धे, बाबूराव पासवान, विनोद अप्पे सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಿನಾಭವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪೂಜ್ಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರಾದ ಜಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಲಹೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಏನ್ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಲಹೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ವಿಳಾಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಳಾಸ್ಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ NITK ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವಿರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರಾವ್ ಅವರು, ಕಬೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು, ಸಾಧುರಿ ಅವರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸತತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ. ಈ ಊರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर में शनिवार को दिए गए अपने कथित बयान से पलटी मारते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी एकता और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। कल मैसूर में पत्रकारों से मुझसे पूछा कि क्या अभी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना जरूरी है। मैंने कहा कि अभी युद्ध जरूरी नहीं है, लेकिन देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। भारत बुद्ध बसवन्ना की भूमि है और हम शांतिप्रिय लोग कभी भी अनावश्यक रूप से युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह अपरिहार्य है तो हमें युद्ध करना चाहिए, चाहे वह पाकिस्तान के खिलाफ हो या अन्य देश के खिलाफ जो हमारी एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है। लेकिन मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है ताकि यह कहा जा सके कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने देवनहल्ली में सरकार के साधना समावेश को संबोधित करते हुए ये बात कही। इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन और मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डॉक्टर कस्तूरीरंगन की महत्वपूर्ण भूमिका और इसरो में उनके दूरगामी योगदान की प्रशंसा की। उन्हें एक ज्ञानी और सहायक व्यक्ति कहा। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन पर इन्फोसिस के सह संस्थापक और एक्सेलर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन कहते हैं, यह देश और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी क्षति है। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सलाह दी। वे बहुत मददगार और सहायक थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उनके योगदान को दशकों तक याद किया जाएगा, क्योंकि यह शिक्षा को देखने के हमारे नजरिए में एक मौलिक बदलाव था। इसरो में उनका योगदान दूरगामी है। हम सभी उन्हें याद करेंगे। वे बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग रागी स्वास्थ्य मिशन पहल की
पहुंच का विस्तार करने के लिए श्री सत्यसाई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के साथ चर्चा कर रहा है। वर्तमान में ट्रस्ट सरकारी स्कूलों में पौष्टिक मिश्रण की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करता है। अब इस कार्यक्रम को आंगनवाड़ी बच्चों तक विस्तारित करने की योजना है, जिसमें गंभीर तीव्र कुपोषण SAM और मध्यम तीव्र कुपोषण MAM के प्रभावित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये कार्यक्रम जुलाई तक शुरू होने की उम्मीद है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पहल के लिए पहले चरण का लक्ष्य यादगीर, चामराजनगर, बागलकोट, हावेरी और धारवाड़ जैसे जिलों में लगभग 4000 बच्चों को कवर करना है। अधिकारी ने कहा है कि विभाग 1 साल से ज्यादा समय से भी आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है। इस विस्तार से पूरे राज्य में पोषण सहायता की पहुंच में काफी वृद्धि होगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रखा है। हमलों के बाद पर्यटन पर असर दिख रहा है, जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी तरह के हमलों के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के शिल्पकार और उससे जुड़े व्यापारियों को इन दिनों काफी नुकसान हो रहा है। हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इनफैक्ट की रोजी रोटी पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना दर्द बयां करते हुए क्या कहा। नुकसान बहुत है, हम लोगों को ही नहीं उठाना पड़ा, सबको। होटल वाला है, फेरी वाला है, और यहाँ का जो ट्रैवल है, जहाँ ड्राइवर बेचारे हैं, उन्होंने लिया है लोन पे गाड़ी लिया है बैंक से, उनको बेचारों को किस्तें भरने पड़ते हैं, तो वो भी इसमें शामिल। ऑलमोस्ट 90% कश्मीरी इसी पे डिपेंड होता था। यहाँ पे कौन सा कारोबार रह गया था? यही एक था टूरिज्म जो हर किसी का घर चलाता था। लेकिन जब से ये अटैक पहलगाम का हो गया, तब से बहुत फर्क हो गया, काम 90% डाउन हो गया। 26/11 मुंबई हमले के अपराधी तहूर राणा को 18 दिन की NIA की मंजूरी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। अदालत लाते समय अदालत के पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। पूरे मार्ग पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। पूरी सुरक्षा के साथ अपराधी को अदालत में पेश किया गया। अंदर पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर में जाती हुई नजर आ रही है। इसी वाहन जो है इसे तहूर राणा को रखा गया है, और इस वैन में देखा जा सकता बहुत तमाम जो रसायन और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ अब तक इसके लिए लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है और अपना अनोखा रूप साफ कर दिया। बहुत जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है। जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। दिल्ली वासियों को मुख्यमंत्री गुप्ता का बड़ा उपहार। आज से दिल्ली में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान व विंडोल
कार्ड मिलेगा, जिसके तहत उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आज अपने कर कमलों से इस योजना की शुरुआत की और कई बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बांटे। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार के तीर्थ स्थल पर आज से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में आए अध्यापिकाओं का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तीर्थयात्री लंबी लंबी कतारों में अपने पंजीकरण की प्रतीक्षा करते नजर आए। बता दें कि मैदान में स्थापित 4 यात्रा धाम रजिस्टर सेंटर पर इस बार विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही इस पर हरिद्वार के किला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने व्यवस्था पर बात की है। वही सुनिए आए थे व्यापारी ने क्या कहा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय वाशिंगटन की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवेश के लिए पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहलगाम आतंकी हमले जस्टिस की मांग करते हुए संस्थापक ने वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। निवेशकों ने संयुक्त राष्ट्र की सरकार पर हिंदुओं को सीमांत निर्माण का आरोप लगाया और पाक सेना प्रमुखों और उनकी सेना पर हत्यारा करार दिया। भारतीय प्रवासियों के सदस्यों ने आईफिल टावर के सामने पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय प्रवासियों के एक सदस्य राजाराम मुनिस्वामी ने कहा कि आज हमारा कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। इसमें 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और हमने अपनी एकता और विविधता दिखाई है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक सभी समुदाय के लोग कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक साथ आए हैं। वैश्विक समुदाय को पता चलेगा कि हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं। यूएसए में एक कॉलेज की छात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त करने में अन्य लोगों के साथ शामिल होकर इसे एक दुखद घटना बताया और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता में खड़े होने की इच्छा व्यक्त की। यह पहलगाम आतंकी हमला एक बहुत ही दुखद घटना है। आज मैंने यहां आने, दूसरों के साथ भाग लेने और पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त करने का फैसला किया। Today I decided to come and just mourn with the rest of the community because this is a really tragic event that happened, and a lot of the media fails to emphasize the fact that this was targeted on the Hindu religion. They specifically asked them what their religion is before killing them, and there's lots of people in my generation. I see them celebrating all the festivals and everything, but when it comes to things like this, they are unable to speak up about Hindu issues. So I wanted to be here and make sure that I'm there for my community in the good times and also in the bad times. Do you draw any parallels with what happened in Israel and what happened in Kashmir, the way it was done? What is your take on that? Yeah, certainly the attack by Hamas on October 7th against Israel, where they took many hostages, many people died. There's definitely a parallel between that. But again, India has always had a very nonviolent approach to other countries. And so I think the way we respond has to be very tactical, but we also have to stand up for ourselves and fight back at some point. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय की फिल्म भूतनी अगले महीने रिलीज होने वाली है। इन वजह से एक्ट्रेस लाइमलाइट में बनी हुई है। इसी बीच मौनी मुंबई में जगह बनी जहां उनका लुक काफी अलग और खास है। सफेद शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उन हेयर स्टाइल ने लोगों को दीवाना बनाया है। ऊपर 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 वेट 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 बस बस मोनी मैम भैया मोनी सामने मोनी सामने मोनी 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 लेफ्ट मैम वेट 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 मोनी कितना मत मोनी मोनी लेफ्ट मैम वेट 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 कितना मत आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम के पास विराट कोहली जैसा सुपरस्टार बल्लेबाज है तो वही भुवनेश्वर कुमार जैसा अनुभवी गेंदबाज भी है। हर डिपार्टमेंट में आरसीबी की टीम मौजूदा सीजन में विरोधी टीमों में इससे एक कदम आगे खड़ी मिल रही है। वह मौजूद समय में पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर मौजूद है और उसका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है। आईपीएल में ज्यादातर टीमें होम ग्राउंड में अच्छा करती हैं, लेकिन घर के बाहर मैचों में उनका रिकॉर्ड खराब होता है। लेकिन मौजूदा सीजन में आरसीबी की कहानी बदली हुई नजर आ रही है। आईपीएल में मौजूदा सीजन में आरसीबी की टीम ने अभी तक अपने होम ग्राउंड से बाहर 6 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। अभी उसका अपने घर से बाहर एक मैच बचा हुआ है जो उसे लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ 9 मई को लखनऊ में खेलना है। आईपीएल के एक सीजन में लीग स्टेज में होम ग्राउंड से बाहर हर एक टीम 7 मुकाबले खेलती है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप, भाजपा के बीदर अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कहा। बीदर के विलासपुर ग्राम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण। सिद्धरामैया ने लिया यू टर्न, कहा जरूरत पड़ी तो युद्ध छेड़ेंगे। इन्फोसिस के सह संस्थापक प्रिंस गोपाल कृष्णा ने पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन के निधन पर शोक व्यक्त किया। बीओपीकेजी पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में हस्तकला कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ा असर, कारीगर भी दुखी। 26/11 मुंबई हमले के बाद तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। बीओपीकेजी आसिम मुनीर कातिल है, पाकिस्तान के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।